So once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics and very good morning to all of you. So yesterday we have discussed the dimensional analysis, and in dimensional analysis I have discussed the uh, what are the different types of forces acting on the fluid flow system, and then what are the various non-dimensional parameter like Reynolds number, Froude number, Euler number, and Weber number and Mach number. And then we have discussed the different types of similarity, like what is geometrical similarity, kinematic similarity, and dynamic similarity. Today I will discuss the models law, like what is Reynolds law, what is Froude law, what is Euler's law, and uh, Weber numbers law and Mach law. And then I will solve problem based on this concept. So let us start. The first, what is models law? Models law. So there are 5 types of models law. First one is Reynolds model law. Second one is Froude law. Euler's law. So for dynamic similarity, we have seen that all the forces like the dimensionless parameter like Reynolds number, Froude number, Euler's number, Weber number, and Mach number should be equal in the model and prototype. But it is very difficult to match these all the non-dimensional parameters with in the model and prototype. So the important force like that is dominant in that dimensionless parameter, that will be considered. So let us discuss one by one. What is Reynolds model law? What is Froude law? What is Euler's law and Weber law and Mach law? So in Reynolds law, apart from the inertia force, so we can write in Reynolds law, apart from inertia force, viscous force is predominant. जब भी इस लॉ की बात करेंगे तो क्या मैंने बोला कि रेनॉल्ड्स लॉ में इनर्शिया फोर्स तो होगा ही, उसके अपार्ट में अगर जो देखा जाएगा तो विस्कस फोर्स इज प्रीडोमिनेंट. मींस these two forces, inertia force and viscous force, will be considered in the Reynolds law. So if I write the Reynolds number in model and prototype, so we can write Reynolds number in model should be equal to the Reynolds number in prototype, or we can write Reynolds number can be written as rho VL. We can write here rho VL divided by mu model में जो होगा that should be equal to the rho VL divided by mu prototype में. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रो m by रो p या रो m into Vm into Lm divided by mu m, that is equal to rho p Vp Lp divided by mu p. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो m by रो p को क्या लिख देंगे? रो m by रो p that is equal to density ratio into Vm by Vp को Vr into Lm by Lp Lr divided by mu m by mu p जो हो जाएगा mu r, that is equal to 1. So Reynolds law में ये जो है हमारा this should be satisfied, where rho r is the density ratio, Vr is the velocity ratio. तो स्केल का रेशियो होगा, मतलब Vr is equal to velocity in the model to the velocity of prototype. Rho r means density in the model to the density of prototype. Lr जो है वो लेंथ का स्केल रेशियो है, that is Lm by Lp, और mu r is the
dynamic viscosity ratio that is equal to the dynamic viscosity in the model and dynamic viscosity in the prototype. So इससे हम लोग क्या जो है, this is the Reynolds law. This we can apply this in Reynolds law. We can apply this formula. So what is the application of this Reynolds model law? So generally जो होता है Reynolds model law जो होगा वो हम लोग अप्लाई करेंगे. What is the use? जो use होगा वो that is the pipe flow में अगर laminar flow हो रहा है then they are very much used in the this Reynolds model law. So here I have written that Reynolds model law is used in pipe flow where viscosity has significant effect like laminar flow. फिर कहाँ पे flow around completely submerged object. कोई भी ऑब्जेक्ट जो completely वाटर में क्या है सबमर्ज्ड है लाइक सबमरीन्स, एयरप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स. तो यहाँ पे भी हम लोग रेनॉल्ड्स मॉडल को यूज करेंगे. पैराशूट व्हेन देयर इज अ ड्रैग, अगर ड्रैग होगा तो पैराशूट में भी हम लोग इस मॉडल्स को यूज कर सकते हैं. तो इसमें जो है डिफरेंट जो आपका टर्म है उसको हम लोग निकाल सकते हैं ताकि जहाँ पे भी अगर बोले कि रेनॉल्ड्स लॉ एप्लीकेबल है या तो ये एग्जाम्पल बोल दे कि हाँ ये चीज यूज किया जा रहा है मॉडल और प्रोटोटाइप में. डायनामिक सिमिलरिटी जो है अप्लाई किया जा रहा है पाइप फ्लो में या पैराशूट में या जो सबमर्ज्ड बॉडी है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है. तो वहां पे हम लोग रेनॉल्ड्स मॉडल अगर लगाएंगे तो क्या करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर जो मॉडल में होगा हमारा वही रेनॉल्ड्स नंबर प्रोटोटाइप में होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया है, तो डिराइव हमने किया है दैट इज इक्वल टू रो आर वी आर इंटू एल आर डिवाइडेड बाई म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग लिखा जाए वेलोसिटी रेशियो वी आर, तो वी आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग म्यू आर डिवाइडेड बाई रो आर इंटू एल आर. सिमिलरली अगर टाइम का स्केल रेशियो, हमें टाइम रेशियो निकालना होगा. टाइम रेशियो मतलब कि टाइम जो होगा वो मॉडल और टाइम इन द प्रोटोटाइप. तो टी आर क्या लिखा जा सकता है, टी आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग एल आर बाई वी आर, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं एल आर डिवाइडेड बाई वी आर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से हो जाएगा रो आर इंटू एल आर. तो यहाँ से हम लोग टी आर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रो आर इंटू एल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू आर. तो दिस इज द टाइम रेशियो. उसी तरह तीसरा पैरामीटर क्या है, हम लोग एक्सीलरेशन का रेशियो भी निकाल सकते हैं. एक्सीलरेशन रेशियो क्या हो जाएगा ए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं पी आर डिवाइडेड बाई टी आर. वी आर जो हमने निकाल लिया है, वी आर कितना है दैट इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाई रो आर इंटू एल आर, और टी आर अभी हमने दिखाया क्या है ये दैट इज रो आर एल आर स्क्वायर इंटू म्यू आर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन रेशियो कैन बी रिटेन एज म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो आर स्क्वायर इंटू एल आर क्यू. तो यहाँ से एक्सीलरेशन का भी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं. उसी तरह के फोर्स के रेशियो का भी हम लोग निकाल सकते हैं. फोर्स रेशियो दैट इज इक्वल टू एफ आर को क्या हम लोग लिख सकते हैं एम आर इंटू ए आर, और एम आर को क्या लिख सकते हैं रो आर इंटू एल आर क्यू इंटू ए आर. ए आर अभी हमने निकाला है तो क्या हो जाएगा रो आर इंटू एल आर क्यू, और ए आर देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये वी कैन राइट म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो आर स्क्वायर इंटू एल आर क्यू. सो एल आर क्यू. तो यहाँ से क्या हो जाएगा रो आर कैंसिल, एल आर क्यू कैंसिल, सो वी कैन राइट म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो आर. तो यहाँ से हमारा फोर्स रेशियो जो आ गया वो क्या आ गया म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो आर. उसी तरह हम लोग पावर के टर्म को भी लिख सकते हैं. पावर क्या हम लोग मालूम है कि पावर का रेशियो क्या होता है, पावर रेशियो पी आर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग फोर्स का रेशियो इंटू वेलोसिटी का रेशियो. फोर्स के रेशियो को अभी हमने निकाला है दैट इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो आर इंटू वेलोसिटी रेशियो हमने निकाला है दैट इज म्यू आर बाई रो आर एल आर. सो म्यू आर divided by rho r into L r. So we can write mu r cube divided by rho r square into L r. Where mu r जो है मैं एक किसी के लिए लिख देता हूँ where mu r can be written as dynamic viscosity in the model divided by dynamic viscosity in the prototype. Rho r क्या होगा, तो rho r जो होगा density in the model divided by density in the prototype.
एल आर क्या होगा, लेंथ इन द मॉडल डिवाइडेड बाय लेंथ इन द प्रोटोटाइप। उसी तरह वेलोसिटी अगर वी आर लिखा जाएगा तो वेलोसिटी इन द मॉडल टू द वेलोसिटी इन द प्रोटोटाइप। सो दिस टर्म्स जो होगा वो हमें यूज होगा कहाँ पे, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जैसे फोर्स का रेशियो या आपको दे दिया तो वहाँ पे मॉडल दिया रहेगा तो आपको प्रोटोटाइप निकालना है, या आपको डायरेक्टली आपका एक वैल्यू कुछ इस तरह बोला है कि हाँ उसकी डेंसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी दी हुई है। तो सबसे पहला हमारा की जो है वो क्या है हमारा, रेनॉल्ड्स नंबर जो मॉडल में होगा दैट शुड बी द इक्वल टू द रेनॉल्ड्स नंबर इन द प्रोटोटाइप, और उससे हमारे पास एक रिलेशन आया था रो आर वी आर इंटू एल आर डिवाइडेड बाई म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1, और उसी से ये सारा रिलेशन आया है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मॉडल जो है तो रेनॉल्ड्स लॉ में मैंने बोला, रेनॉल्ड्स ने बोला कि अपार्ट फ्रॉम द इनर्शिया फोर्स एक और फोर्स जो होगा जो कि डोमिनेंट होगा, जो कि कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज मैंने बोला है कि मॉडल्स लॉ में सारे नॉन डायमेंशनल पैरामीटर को इक्वेट करना दैट इज नॉट पॉसिबल, सारे को इक्वेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोला गया है कि जो आपका इंपोर्टेंट फोर्स है उस लॉ के लिए उस फोर्स को आप लोग कंसीडर करिए। तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर में हमारा जो इंपोर्टेंट फोर्स है दैट इज इनर्शिया फोर्स एंड द यहाँ पे विस्कस फोर्स, ठीक है। तो दूसरा जो मॉडल है दैट इज फ्राउड लॉ। फ्राउड लॉ क्या बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम दी, यहाँ पे भी सब में इनर्शिया फोर्स तो होगा ही, अपार्ट फ्रॉम inertia force, gravity force is predominant। जो अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स जो होगा उसके अपार्ट में जो है आपका ग्रेविटी फोर्स भी जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा। बाद बाकी अदर फोर्सेस लाइक प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, जो फोर्स हमने लिया है इलास्टिक फोर्स या कंप्रेसिबल फोर्स या सरफेस टेंशन फोर्स, उसके अपार्ट में जो फ्राउड लॉ एप्लीकेबल वहीं पे करेंगे जहां पे इनर्शिया फोर्स के अलावा ग्रेविटी फोर्स जो होगा वो सब भी होगा, लेकिन ये जो प्रीडोमिनेंट जो फोर्स है दैट विल बी द इनर्शिया फोर्स एंड द ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको, एक रिलेशन हम लोग फिर से यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, फ्राउड नंबर जो होगा हमारा मॉडल में दैट शुड बी इक्वल टू द फ्राउड नंबर इन द प्रोटोटाइप। देखते हैं यहाँ से क्या रिलेशन आता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, फ्राउड नंबर इन द मॉडल, तो फ्राउड नंबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी इन द मॉडल डिवाइडेड बाय जी इंटू एल एम इन द मॉडल। तो वहां से आप रिलेशन हम लोग क्या डेवलप कर सकते हैं, क्या रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, देखिए क्या आएगा, दोनों को इक्वेट कर दो। फ्राउड नंबर क्या होता है, v बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, v बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एल से देखिए क्या रिलेशन आ रहा है, दोनों मॉडल और प्रोटोटाइप में इक्वेट कर दीजिए उसको। मॉडल और प्रोटोटाइप में दोनों को इक्वेट करके देखिए क्या रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर जो है हमारा मॉडल में, फ्राउड नंबर इन द मॉडल दैट शुड बी इक्वल टू द फ्राउड नंबर इन द प्रोटोटाइप। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर जो हमने डिराइव किया कल रिलेशन दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ से क्या आया था रिलेशन, v बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एल जो हमारा मॉडल में होगा दैट शुड बी इक्वल टू द v बाई स्क्वायर रूट ऑफ जी एल इन प्रोटोटाइप। तो यहाँ से क्या आ गया, हमने देखा कि जी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएम जब तक कि क्वेश्चन में ना बोला जाएगा कि हाँ ये वैल्यू को भी अलग रख लेना है, तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एल एम दैट इज इक्वल टू वीपी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एलपी। तो यहाँ से वीएम बाई वीपी क्या हो जाएगा, वीएम बाई वीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एम बाई एलपी। तो क्या लिख सकते हैं, एल आर टू द पावर हाफ। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वी आर जो होगा वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एल आर, वी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर जो है। इससे हम लोग बहुत सारा सारा चीज के फिर से हम लोग सारा चीज डिराइव कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी रेशियो तो यही हो गया हमारा। यहाँ से फिर हम लोग टाइम रेशियो, एक्सीलरेशन रेशियो, फोर्स रेशियो, डिस्चार्ज का रेशियो, सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसका इस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इस लॉ का एप्लीकेशन जो है जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज द फ्री सरफेस फ्लो सच एज स्पिलवे में वियर्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप जहाँ पे होगा। हाइड्रोलिक जंप का मतलब क्या है कि वाटर जो है वो हमारा फ्लो हो रहा है और हमने कोई एक जगह एक बैरियर लगा दिया है ताकि कुछ एनर्जी जो वाटर की होगी जैसे स्ट्राइक करेगी सर्टेन जंप आप देखते हुए कि आपका जंप होता होगा वाटर का, तो वहां पे हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। फ्लो ऑफ लिक्विड जेट फ्रॉम ऑरिफिसेस, फिर फ्लो ओवर वियर्स एंड नॉचेज। वियर एंड नॉचेज मैंने पहले ही बोला था कि हाँ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। फिर मोशन ऑफ शिप इन रफ एंड टर्बुलेंट सी,
तो दिस यहाँ पे अगर क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा कि लिक्विड जेट जैसे है, या वियर या नॉचेस की बात होगी, या मोशन ऑफ शिप इन रफ एंड टर्बुलेंट सी की बात की जाएगी, तो वहां पे हम लोग फ्राउड लॉ को अप्लाई करेंगे। और वहां पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज इक्वल टू वी आर मतलब वेलोसिटी का रेशियो, और वी कैन से दैट वेलोसिटी इन द मॉडल टू द वेलोसिटी इन द प्रोटोटाइप that should be equal to the square root of length in the model to the length in the prototype, or we can write VR is equal to square root of LR। तो यहाँ से क्या क्या रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो पहला रिलेशन तो हम लोग डेवलप किया क्या, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। अभी हमने देखा ये अब दिस इज द की, अगर ये आप ये अब वेलोसिटी रेशियो को सिर्फ जान गए हो तो सारा चीज आप निकाल लोगे। तो यहाँ से क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LR। दूसरा हम लोग क्या है, टाइम रेशियो, तो TR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि TR कैन बी रिटन एज LR बाई VR। अब यहाँ पे LR और VR के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ LR। तो यहाँ से टाइम का रेशियो भी जो आ गया वो क्या आ गया, LR टू दी पावर हाफ। इसी तरह तीसरा जो है वो एक्सीलरेशन रेशियो, AR कैन बी रिटन एज, AR को क्या लिख सकते हैं हम लोग, VR बाई TR, और यहाँ से VR के जगह पे हम लोग रख देंगे अगर स्क्वायर रूट ऑफ LR, और TR के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ LR। मतलब कि दिस शुड बी 1, मतलब फ्राउड लॉ जहां पे भी एप्लीकेबल होगा तो जितनी एक्सेलरेशन मॉडल में होगी उतनी ही प्रोटोटाइप में होगी। तो क्वेश्चन इससे खूब पूछता है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखोगे तो सो मेनी क्वेश्चन यू विल गेट, इवन इन द गेट एग्जामिनेशन बोलेगा कि हाँ ये फ्राउड लॉ जो है एप्लीकेबल है, या दूसरा जो है क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि दैट इज द ग्रेविटी फोर्स इज प्रीडोमिनेंट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अप्लाई द फ्राउड लॉ। जहां पे बोलेगा कि विस्कस फोर्स इज अपार्ट, इनर्शिया फोर्स इज कॉमन इन ऑल द लॉ, इनर्शिया फोर्स है वो दैट विल बी द कॉमन इन द ऑल द लॉ, मतलब कि 5 लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, फ्राउड लॉ, आपका आइलर्स मॉडल लॉ, वेबर मॉडल लॉ और मैक मॉडल लॉ। तो सब में जो होगा इनर्शिया फोर्स तो होगा अपार्ट फ्रॉम द इनर्शिया, बट इन द रेनॉल्ड्स मॉडल द विस्कस फोर्स इज प्रीडोमिनेंट। तो क्वेश्चन में इसी तरह रहेगा। कभी कभी जैसे शिप का मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो शिप मॉडल में क्या बोलेगा कि रेनॉल्ड्स मॉडल एज वेल एज फ्राउड मॉडल दोनों जो होगा वो हमारा एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो हाफ सबमर्ज होता है। शिप की केस अगर को हम लोग करेंगे तो वो फुल्ली सबमर्ज नहीं है, पार्शियली सबमर्ज इन द वाटर है, दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई फ्राउड लॉ एज वेल एज द रेनॉल्ड्स लॉ। तो वहां पे देखेंगे कि क्या रिलेशन आता है। फर्स्टली तो यहाँ पे जो होगा एक्सीलरेशन का रेशियो है वो यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब कि जो मॉडल में होगा वही एक्सीलरेशन हमारा प्रोटोटाइप में होगा। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन आ गया कि एक्सीलरेशन इन द मॉडल दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सीलरेशन इन द प्रोटोटाइप। उसी तरह अगर हम लोग डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज रेशियो, तो क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR इंटू VR। AR के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, LR स्क्वायर, और VR के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ LR। तो यहाँ से क्या आ गया, LR टू द पावर 5/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस मॉडल से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा जो है वो डिस्चार्ज का रेशियो, सबसे ज्यादा आपका डिस्चार्ज का रेशियो ही पूछा जाएगा कि डिस्चार्ज मॉडल में ये है तो प्रोटोटाइप में क्या होगा। उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स के रेशियो का भी हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स रेशियो क्या हो जाएगा, FR इज इक्वल टू, अभी हमने देखा फोर्स का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, MR इंटू AR। MR क्या हो जाएगा, रो R इंटू LR/Q, और यहाँ पे AR है तो AR की जगह पे हमने देखा है क्या है, AR तो हमारा 1 हो जा रहा है, या तो यहाँ से आप लिखो AR को VR/TR तो वो वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या हो गया, रो R इंटू LR/Q। उसी तरह हम लोग जो है इसके पावर के रेशियो को भी हम लोग निकाल सकते हैं, पावर रेशियो दैट इज इक्वल टू FR इंटू VR। FR कितना है हमारा, FR अभी हमने निकाला है रो R इंटू LR/Q, और VR की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ LR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो R इंटू LR टू दी पावर कितना हो गया, यहाँ पे आपका जो देखेंगे तो 3 + 1/2 मतलब कि 7/2। तो यहाँ से आपका रो R इंटू LR पे पावर 7/2। सो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट विल बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, जो होगा जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, ये सारा रेशियो है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है आपका, कि VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LR। ये चीज हमें याद रखना है बस। तो अगर आप जैसे मैंने बोला कि रेनॉल्ड्स लॉ में रो R इंटू VR इंटू LR डिवाइडेड बाई म्यू R इज इक्वल टू 1, अगर वो आपको मालूम है और वो कुछ भी नहीं है,
जो लॉ है उस लॉ का जो है रेनॉल्ड्स लॉ है, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो मॉडल और प्रोटोटाइप में इक्वेट करना है। इफ फ्राउड लॉ इज देयर सो फ्राउड नंबर इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इक्वेट करना है। उसके बाद जो रिलेशन आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे वंस वी हैव इक्वेटेड द वैल्यू ऑफ फ्राउड नंबर इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, वी गेट द वैल्यू ऑफ Vr is equal to स्क्वायर रूट ऑफ Lr। एक चीज का ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कॉमन कर दिया। क्वेश्चन में अगर बोल दे कि अलग है तब वहां पे जी के इफेक्ट को भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये सारा रेशियो है। तीसरा जो है हमारा कोड क्या है, वो आइलर्स मॉडल लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम inertia force, pressure force is predominant। अब आइलर्स नंबर जो है यहाँ पे आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो आइलर्स नंबर क्या था हमारा, आइलर्स नंबर जो होगा दैट शुड बी इन द मॉडल, इट शुड बी इक्वल टू द आइलर्स नंबर इन द प्रोटोटाइप। आइलर्स नंबर क्या था हमारा, आइलर्स नंबर जो था वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स। तो वहां से आपका यहाँ पे अगर किया जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स कितना था, रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका जो था प्रेशर फोर्स। पहले जो था एक्सप्रेशन वो फिर से मैं अगर यहाँ पर डिराइव करूँ तो आइलर्स नंबर दैट इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई प्रेशर फोर्स। और इनर्शिया फोर्स जो है लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका प्रेशर फोर्स जो होगा पी इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल, सो वी बाई स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई रो। इसी चीज को हमें इक्वेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वी मॉडल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई रो इन मॉडल दैट इज, या तो एक कॉमन लिख दिया जाए डायरेक्ट। तो क्या इस तरह लिख सकते हैं कि वी बाई v डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ p बाई रो, मॉडल में जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी डिवाइडेड बाई p बाई रो इन द प्रोटोटाइप। अब जो भी रिलेशन आएगा इसी से हम लोग डिराइव कर लेंगे, इसको आगे हमें प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी डिवाइड जो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो p है वो हमारा प्रेशर है, रो डेंसिटी और v वेलोसिटी है। अब इससे जो इक्वेट आएगा, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं vm बाई vp, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ pm और बाई स्क्वायर रूट ऑफ pp। तो बस इसी से हम लोग रिलेशन को हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी अगर बोला जाएगा कि आइलर्स मॉडल लॉ या प्रेशर फोर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट है अपार्ट फ्रॉम द इनर्शिया फोर्स, तो हम यहाँ से जो है ये वाला रिलेशन जो है हम लोग डेवलप करके और जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो हम लोग निकाल लेंगे। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो प्रेशर फोर्स का जनरली जो है वो इन पाइप फ्लो एट हाई प्रेशर, जहाँ पे भी प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, प्रेशर की वैल्यू जो है पाइप में बहुत ज्यादा अगर हाई है तो वहां पे हम लोग आइलर्स मॉडल लॉ को अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ कैविटेशन, कैविटेशन जहां पे होगा वहां पे भी आइलर्स लॉ को अप्लाई करेंगे। और प्रेशर ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व, हमने वॉल्व को जैसे सडन क्लोजर वॉल्व किया है तो क्या होगा, वहां पे भी हम लोग आइलर्स मॉडल लॉ को अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो चौथा जो है हमारा, चौथा जो है क्या, दैट इज क्या है, वेबर नंबर। तो वेबर नंबर में क्या है, वेबर नंबर जो मैंने कल बताया था कि अपार्ट फ्रॉम, ये मॉडल क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम दी inertia force surface tension force is predominant। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वेबर नंबर हमारा क्या था, तो वेबर नंबर जो था स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई सरफेस टेंशन फोर्स। और ये क्या था, इनर्शिया फोर्स दैट इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और सरफेस टेंशन फोर्स लेट सिग्मा बी द सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो गया था, एल एल कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे स्क्वायर रूट ऑफ रो एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा। सो इट कैन बी रिटन एज v डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाई रो एल। बस कुछ नहीं करना है। तो फिर वेबर मॉडल लॉ में भी हमें क्या करना है कि वेबर नंबर जो होगा दैट इज इन द मॉडल, इट शुड बी इक्वल टू द वेबर नंबर इन द प्रोटोटाइप। और वी कैन राइट v बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई रो एल, जो हमारा मॉडल में होगा दैट शुड बी इक्वल टू द v डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाई रो एल प्रोटोटाइप में। और उससे हम लोग फिर रिलेशन डेवलप कर लेंगे। Here sigma is the surface tension
इन न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर, और v जो है वो आपका वेलोसिटी जो है, और l जो है हमारा लेंथ है, और रो जो है डेंसिटी है। तो जो चीज भी पूछा जाएगा अगर वेबर लॉ एप्लीकेबल होगा तो वहां पे अगर मान लो कि वेलोसिटी और डेंसिटी दे दिया और लेंथ का स्केल रेशियो दे दिया, लेंथ स्केल रेशियो, तो वहां से सरफेस टेंशन मॉडल में दिया हुआ है तो सरफेस टेंशन प्रोटोटाइप में निकाल लेगा, या तो अगर वेलोसिटी ही निकालना है तो ये सारा रिलेशन जो दिया रहेगा तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। वेबर लॉ को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जहां पे हमारा कैपिलरी का इफेक्ट होगा, जैसे कैपिलरी राइज इन नैरो पैसेजेस, फ्लो ओवर वियर्स फॉर स्मॉल हेड्स, राइजिंग बबल लाइक सीपेज फ्लो थ्रू द सॉइल। आपका सीपेज हो रहा है फ्लो थ्रू द सॉइल, तो वहां पे भी हम लोग वेबर नंबर को अप्लाई करेंगे। और फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज, यहाँ पे भी हम लोग जो है वेबर नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो मॉडल है हमारा जिसे बोला जाता है मैक लॉ। मैक लॉ को हमने क्या बोला था, मैक लॉ जो है इसमें जो बोला था कि स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाई कंप्रेसिबिलिटी फोर्स या इलास्टिक फोर्स, और यहाँ पे जब हमने डिराइव किया था तो वहां पे क्या आ गया था हमारा v बाई सी, स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए अपार्ट फ्रॉम, ये लॉ क्या बोलता है, तो अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स आपका जो होगा कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिक फोर्स इज प्रीडोमिनेंट। अब अगर ये मॉडल हमें अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, मैक नंबर इन द मॉडल इट शुड बी इक्वल टू द मैक नंबर इन प्रोटोटाइप। या तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं v बाई सी इन द मॉडल दैट इज इक्वल टू v बाई सी इन द प्रोटोटाइप। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि मैक नंबर से दो तीन चीज और डिफाइन करते हैं कि जो स्पीड जो है वो किस तरह हम लोग क्लासिफाई करेंगे मैक नंबर से। तो मैक नंबर की वैल्यू जो होगी, अगर हमारी जो होगी अगर 0.3 से अगर कम है, ये वैल्यू अगर मैक नंबर की वैल्यू अगर 0.3 से कम है गया, मतलब कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का कोई इफेक्ट जो है उसमें नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें इस चीज को, इफ मैक नंबर, यहाँ पे अगर लिखे कि मैक नंबर की वैल्यू जो है वो v बाई सी है, और इसकी वैल्यू अगर इफ v बाई मैक नंबर डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखा जाए, इफ वैल्यू ऑफ मैक नंबर इज लेस देन, इफ m इज लेस देन 0.3, अगर 0.3 से कम है हमारा वैल्यू 0.3, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर हमारा 0.3 से वैल्यू कम है तो कोई इफेक्ट नहीं हमारा कंप्रेसिबिलिटी का। उसी तरह अगर मैक नंबर की वैल्यू, इफ मैक नंबर इज लेस देन 1, देन इस तरह के फ्लो को बोलेंगे सबसोनिक। उसी तरह अगर m की वैल्यू अगर हमारा 1 से ज्यादा है, अगर m की वैल्यू 1 से के बराबर है तो बोलेंगे सोनिक, और m 1 से ज्यादा है तो सुपरसोनिक। इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 देन सोनिक, और m की वैल्यू अगर 1 से बहुत ज्यादा है हाइपरसोनिक। तो अगर मैंने बोला कि मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, सबसोनिक। m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, अगर एग्जैक्टली 1 है तो सोनिक, और मैक नंबर की वैल्यू अगर 1 से भी बहुत ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। जनरली इसका एप्लीकेशन जो मैक नंबर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं। बस अगर ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाँ जो होगा कि अगर m की वैल्यू में 0.3 से कम है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा कंप्रेसिबिलिटी का, मतलब कि अगर इफेक्ट हमारा कंप्रेसिबिलिटी का लेना है तो m की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3। ओके, तो ये जो मैकेनिकल में इसका एप्लीकेशन बहुत है। अब ये मैक लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे यूज हम लोग कर सकते हैं, सो एरोडायनेमिक्स टेस्टिंग सच एज लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल एंड रॉकेट्स। मैंने पहले बोला कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस में तो पूरा का एरोस्पेस के लिए तो ये कोर है। तो मैक नंबर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कहाँ, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और फिर जहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है वहाँ पे। अंडर वाटर टेस्टिंग ऑफ टॉर्पीडोज, वाटर हैमर प्रेशर और फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू पाइप एट वेरी हाई स्पीड। तो ये सारा जो है वो वहाँ।
अब क्वेश्चन में अगर वहां पे बोला जाए कि हाँ मैक नंबर को वेरी करा रहा है, मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों को यूज किया गया है, तो या तो अगर यहाँ पे ये V/C हमने लिखा है, या तो बल्क मॉडुलस के टर्म में भी हम लोग लिख सकते थे इसको। हमने क्या इसको यहाँ पे लिख सकते थे V/√K/ρ। यहाँ पे जो हमने उसी को तो C लिख दिया था, यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह? तो यहाँ पे हम लोग मॉडल अगर प्रोटोटाइप की बात की जाए तो किस तरह आया था, V/√K/ρ in the model that should be equal to the V/√K/ρ in the prototype। अब मैक नंबर है, सर ने बता दिया है ऐसा कि सी है, के कहाँ पे आ रहा है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, वेयर के जो है वहाँ पे बल्क मॉडुलस जो है फ्लूइड का, रो जो है डेंसिटी और वी वेलोसिटी है। तो इसमें से जो है एक चीज को वो अननोन रखेगा, चाहे वो मॉडल या प्रोटोटाइप में वेलोसिटी दिया रहेगा, बल्क मॉडुलस पूछ लेगा या डेंसिटी आपसे पूछ लेगा, तो वो आपसे पूछेगा उस तरह, बोलेगा कि जहाँ पे कहा क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम द इनर्शिया फोर्स कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट था, तो हमारा इलास्टिक फोर्स या कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। कुछ ऐसे भी मॉडल होते हैं जो पार्शियली सबमर्ज होते हैं, जैसे मॉडल टेस्टिंग फॉर पार्शियली सबमर्ज बॉडी। जैसे इसमें बात किया जाए शिप मॉडल, अगर यहाँ पे बात की जाए शिप मॉडल, इस तरह के मॉडल में जो होगा हमारा दोनों लॉ जो होगा, जो दो लॉ जो होगा एप्लीकेबल होगा, लाइक यहाँ पे रेनॉल्ड्स लॉ एंड प्राउड लॉ। दोनों लॉ एप्लीकेबल होगा, ये दोनों लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्रीडोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉड लॉ से तो हमें मालूम था कि क्या था, हमें फ्रॉड लॉ से क्या मिला था, फ्रॉड लॉ से हमें एक जो की जो मिला था वो दैट इज इक्वल टू BR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LR। अब जैसे हम लोग रेनॉल्ड्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो रेनॉल्ड्स लॉ से हमें क्या मिला था, फ्रॉम रेनॉल्ड्स लॉ से हमें क्या मिला था कि ρr इंटू VR इंटू LR डिवाइडेड बाई μr दैट इज इक्वल टू 1। अब यहीं पे हमने दोनों को अप्लाई जब करना है, दोनों लॉ एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आप VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LR और LR की जगह पे आप रख के एक रिलेशन डिराइव कर लो। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से μr इंटू VR की जगह पे हमने रखा है स्क्वायर रूट ऑफ LR इंटू LR डिवाइडेड बाई μr दैट इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट ρr इंटू LR टू द पावर 3/2 divided by mu r that is equal to 1, और we can write LR to the power 3/2 divided by, इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, mu by rho क्या है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, so mu r that is equal to 1। so we can apply जो that depends on the situation कि क्या दिया हुआ है। अगर आपका डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये वाला अप्लाई करेंगे, अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है शिप मॉडल में तो हम लोग ये वाला अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है आज के सेशन का, सो वाटर हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 0.01 स्टोक फ्लोज एट ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ए पाइप ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर। एक वाटर जो है फ्लो कर रहा है जिसकी विस्कोसिटी जो है वो 0.01 स्टोक्स फ्लोज एट ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ए पाइप ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर। फॉर डायनामिक सिमिलरिटी the velocity of oil of kinematic viscosity 0.03 stocks in a pipe of same diameter will be। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है तो क्या कर दो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए रेनॉल्ड्स लॉ, रेनॉल्ड्स मॉडल, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका विस्कोसिटी का इफेक्ट है, तब तो यहाँ पे क्या है विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स लॉ हम लोग क्या लिख देंगे, रेनॉल्ड्स लॉ जो होगा हमारा किसके लिए, तो वाटर जो फ्लो कर रहा है हमारा जो है एक बार जो है दैट इसमें वाटर में दैट शुड बी इक्वल टू द ऑयल। तो यहाँ पे हमने वाटर लिख दिया है और फिर रेनॉल्ड्स नंबर जो होगा हमारा ऑयल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P वाटर इनटू, यहाँ पे पाइप फ्लो है तो डायमीटर आ जाएगा, यहाँ पे डायमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग V वाटर इनटू डायमीटर ऑफ द पाइप जो होगा वाटर जब फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर का पाइप फ्लो में, उसी तरह जब ऑयल फ्लो हो रहा है तो इनटू डी ऑयल डिवाइडेड बाय न्यू। अब बोला जा रहा है कि डायमीटर जो पाइप का है वो सेम है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड,
तो 2 मीटर डिवाइडेड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जब पाइप में वाटर फ्लो हो रहा था तब कितनी है 0.01 स्ट्रोक। अब यूनिट का ध्यान, यूनिट नहीं चेंज करेंगे बिकॉज उधर भी स्टॉक नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब वाटर का पाइप में ऑयल फ्लो होगा तो वहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी दी हुई है 0.03 स्ट्रोक। सो दिस वैल्यू इज 0.03। तो वेलोसिटी 2 into 0.03 divided by 0.01. So it will be 6 meter per second. D option is correct. Second question. In the model of a highway bridge constructed to a scale of 1:25, the force of water on the pier was measured to be 0.5 kg. The force on the prototype pier will be. आपका जो है लेंथ का स्केल दिया हुआ है, कितना लेंथ का स्केल जो दिया हुआ है 1/25। अगर मॉडल में हम लोग 1 मीटर लेंगे या जो 1 सेंटीमीटर लेंगे तो प्रोटोटाइप में हमें 25 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेंथ का स्केल दिया हुआ है, दैट इज LR इज इक्वल टू 1/25। अब फोर्स हमें कंसीडर करना है, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते थे, अभी हमने देखा है क्या कि फोर्स का रेशियो, फोर्स जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास इंटू एक्सीलरेशन है तो मास जो होगा आपका क्या है रो आर इंटू LR³ इंटू एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखे थे PR/TR, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं रो आर इंटू LR³ इंटू VR के जगह पे आप फिर रख दो, VR के जगह पे क्या था, तो हमने फोर्स का जो डिराइव किया है वहां से यहाँ जो निकलेगा जो है VR की जगह पे आप रख दो। VR की जगह पे हमने जो रेनॉल्ड्स लॉ में अप्लाई किया था वो क्या अप्लाई किया था, देखिए यहाँ पे μr/ρr into LR। हाँ, तो उसको यहाँ पे पुट करिए और देखो कितना आंसर आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है। मास जो है अब यहाँ पे फोर्स जो दिया हुआ है वो केजी में है, ये चीज का भी ध्यान रखें, तो जी कैंसिल हो जाएगा, ये चीज का भी ध्यान रखिएगा। अरे यहाँ पे जो है आपका क्या है, इन द मॉडल ऑफ हाईवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड इन द फोर्स ऑन द वाटर ऑन द पियर वाज मेजर्ड, तो यहाँ पे एफ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं m इंटू ए या m इंटू जी, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, लेंथ का स्केल दिया हुआ है आपके पास, लेंथ स्केल इज गिवन, देखो कितना आएगा पियर में। सब लोग निकालिए, बैठना नहीं है, कैलकुलेटर से चलाइए आप। अरे रो इंटू LR³ इंटू एक्सीलेशन, एक्सीलेशन की जगह पे क्या लिखेंगे VR/TR, और यहाँ पे अगर फ्राउड लॉ लगाएं तो क्या हो गया रो आर इंटू LR³ डिवाइडेड बाई VR की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ LR, यहाँ पे जो हो जाएगा आपका VR स्क्वायर रूट ऑफ LR और स्क्वायर रूट ऑफ LR, ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया रो आर इंटू LR³। अब जब डेंसिटी भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया कि आपका जो फोर्स का जो है यहाँ पे अगर लिखा जाएगा तो क्या होगा फोर्स इन द मॉडल डिवाइडेड बाई फोर्स इन द प्रोटोटाइप, दैट इज इक्वल टू LR⁻3, बिकॉज जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फोर्स FR इज इक्वल टू LR³, बिकॉज डेंसिटी कुछ दिया नहीं हुआ है, हमने इक्वेट कर दिया है दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F मॉडल डिवाइडेड बाई F प्रोटोटाइप दैट इज इक्वल टू LR⁻3। अब F की वैल्यू जो है मॉडल में जो दी हुई है कितना 0.5 kg, मॉडल की वैल्यू जो है वो कितना है 0.5 kg इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स को, तो वो जी कैंसिल हो गया, तो 0.5 डिवाइडेड बाई FP दैट इज इक्वल टू LR की वैल्यू कितनी है 1/25, सो 1/25 टू द पावर 3, तो यहाँ से FP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केजी में ये निकलेगा, तो ये कितना हो गया 25 टू द पावर
25 टू द पावर 3 इंटू 0.5, तो ये वैल्यू हो गया 7812.5 kg। देखो कोई ऑप्शन है? 7812.5 kg, सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, a spillway of an irrigation project is to be studied by means of a model constructed to a scale of 1:9. The prototype discharge is 100 meter cube per second, neglecting the viscous and surface tension effect. आपको विस्कस इफेक्ट नहीं लगाना है, मतलब कि रेनॉल्ड्स लॉ नहीं एप्लीकेबल है, सरफेस टेंशन इफेक्ट्स को भी हमें नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड फ्लो रेट इन द मॉडल, मॉडल में कितना होगा? प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज दिया हुआ है, डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप इज गिवन। सबसे पहले तो आपका लेंथ का स्केल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लेंथ एल आर की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू एल आर इज इक्वल टू 1/9, so LR we can write 1/9, and the discharge in the prototype that is equal to 1000 meter cube per second, 1000 meter cube per second। viscous effect हमें लेना नहीं, मतलब we can not apply the Reynolds law। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग फिर से फ्राउड लॉ लगाएंगे। तो फ्राउड लॉ में हमें देखा था कि क्या था, VR is equal to स्क्वायर रूट ऑफ LR, और डिस्चार्ज का हमने देखा था कि QR is equal to क्या लिख सकते हैं, AR into VR, और AR को क्या लिख सकते हैं, LR स्क्वायर into VR के जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ LR, मींस LR to the power 5/2। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, QR को Q मॉडल डिवाइडेड बाय Q प्रोटोटाइप, दैट इज इक्वल टू LR टू द पावर 5/2, मतलब कि 1/9 टू द पावर 5/2। अब मॉडल का डिस्चार्ज हमें निकालना है, अब प्रोटोटाइप का दिया हुआ है कितना, 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1/9 टू द पावर 5/2। तो यहाँ से Q मॉडल जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 2.5। देखो कितना आ रहा है ये वैल्यू, 1000 divided by 9 to the power 2.5, so this value is coming 4.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मॉडल में जो हमारा डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा, 4.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड एज कंपेयर टू द प्रोटोटाइप 4.11। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए लैबोरेटरी मॉडल ऑफ ए रिवर इज बिल्ट टू ए ज्योमेट्रिक स्केल ऑफ 1:100। द फ्लूइड यूज्ड इन द मॉडल ऑफ ऑयल ऑफ मास डेंसिटी 900 kg per meter cube। द हाईएस्ट फ्लड इन द रिवर इज 10,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ था। द करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज इन द मॉडल शैल बी। अटेम्प्ट करिए सब लोग। एक लेबोरेटरी मॉडल जो है, तो लेबोरेटरी में जो भी काम होगा वो क्या होगा, मॉडल होगा या प्रोटोटाइप होगा? लेबोरेटरी जो है वो स्मॉल स्केल पे काम किया जाएगा या हाई स्केल पे? लो स्केल पे काम किया जाएगा तो जनरली वो मॉडल हो जाएगा। हाई स्केल पे जो काम होगा वो प्रोटोटाइप होगा। जनरली, इन जनरल बोला जा रहा है, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि जो डायमेंशन ऑफ द मॉडल जो होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू द प्रोटोटाइप। बट हम लोग पूरा इसको बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि मॉडल का डायमेंशन इज ऑलवेज लेस देन द प्रोटोटाइप। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया कि हमेशा कम ही होता है, तो ये नहीं। जनरली जो है क्या करते हैं कि मॉडल के डायमेंशन को कम लेते हैं एज कंपेयर टू द प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लेबोरेटरी मॉडल ऑफ ए रिवर इज बिल्ट टू ए ज्योमेट्रिक स्केल ऑफ, ज्योमेट्रिक स्केल मतलब क्या, या तो ये लेंथ का स्केल है, तो यहाँ पे लेंथ का स्केल ज्योमेट्रिक, मैंने 3 तरह के स्केल को बताया था, ज्योमेट्रिक स्केल, काइनेमेटिक स्केल, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी एंड डायनामिक सिमिलरिटी। तो ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में मैंने बोला था कि या तो LM/LP या विड्थ का रेशियो या हाइट का रेशियो इट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पे आपका जो देखा जाए तो ज्योमेट्रिक स्केल जो दिया हुआ है LR इज इक्वल टू 1/100, और द फ्लूइड यूज्ड इन द मॉडल, जो मॉडल का फ्लूइड का जो है दैट जिसकी डेंसिटी जो है वो दैट इज इक्वल टू 900 kg पर मीटर क्यूब, 900 kg पर मीटर क्यूब है। द हाईएस्ट फ्लड इन द रिवर, हाईएस्ट मतलब दिया हुआ, मतलब कौन सा डिस्चार्ज दिया होगा ये, मॉडल में या प्रोटोटाइप में? तो ये प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज जो है वो कितना है, 10,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है द करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज इन द मॉडल, मॉडल में कितना होगा डिस्चार्ज की वैल्यू? तो मैंने तो देखा है कि हाँ जो डिस्चार्ज की वैल्यू जो है, तो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो तो डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है ना। तो डिस्चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फ्राउड लॉ लगाएं, अगर अकॉर्डिंग टू फ्राउड लॉ, फ्राउड डेंसिटी जो दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्राउड लॉ VR इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ LR। तो यहाँ से हमने डिस्चार्ज अभी देखा है कि QR इज इक्वल टू कितना था,
दैट इज इक्वल टू LR टू द पावर 5/2। अब यहाँ पे निकाल लो Q मॉडल डिवाइडेड बाई Q प्रोटोटाइप, दैट इज इक्वल टू LR टू द पावर 5/2। यहाँ से मॉडल का डिस्चार्ज हमें निकालना है और हाईएस्ट डिस्चार्ज जो है वो 10,000 मीटर क्यू, दैट इज इक्वल टू LR। LR की वैल्यू कितनी है 1:100, सो 1:100 टू दी पावर 5/2। तो यहाँ से हम लोग मॉडल का डिस्चार्ज जो है वो निकाल लेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर 2.5। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मॉडल में जो डिस्चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यू कैन सी द क्लोजेस्ट, कितना क्लोज आंसर दिया हुआ है, एक 0.105 है, सी ऑप्शन को जो बनाया है वो 0.105। तो जो क्लोज सबसे हमारा करेक्ट आंसर है दैट विल बी द 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का, द फ्लो ऑफ ग्लिसरीन जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो दी हुई है 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन एन ओपन चैनल is to be modeled in the laboratory flume using water। ये मॉडल जो है वो वाटर से यूज किया गया है और जो हमारा जो एप्लीकेशन जो है हमारा वो फील्ड में दैट इज ग्लिसरीन को यूज किया गया है, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है और वाटर की भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है। एज द फ्लोइंग फ्लूइड इफ बोथ ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी, यहाँ पे बोल दिया है कि ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी आर इंपोर्टेंट, दोनों है इंपोर्टेंट है हमारा, ग्रेविटी फोर्स भी और विस्कोसिटी फोर्स आर इंपोर्टेंट। व्हाट शुड बी द लेंथ स्केल, लेंथ स्केल हमारा क्या होना चाहिए, द रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप टू मॉडल डायमेंशन। अब लेंथ स्केल को यहाँ पे चेंज कर दिया है, हम लोग जो पढ़ते हैं वो मॉडल टू प्रोटोटाइप है, यहाँ पे आपको LP/LM का वैल्यू पूछा है फॉर मेंटेनिंग द डायनामिक सिमिलरिटी। डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप अगर देखो तो डायनामिक सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए तो दोनों, तो पहले तो हम लोग रिनॉल्ड्स लॉ को इक्वेट कर दे रहे हैं, तो रिनॉल्ड्स नंबर इन द मॉडल दैट इज इक्वल टू रिनॉल्ड्स नंबर इन द प्रोटोटाइप। अब रिनॉल्ड्स नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में, सो Vm × Lm डिवाइडेड बाई न्यू m दैट इज इक्वल टू Vp × Lp डिवाइडेड बाई न्यू p। तो यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है और बोला है कि दोनों इंपोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो Vm/Vp क्या हो जाएगा Vr, Lm/Lp को क्या लिख दिया Lr दैट इज इक्वल टू न्यू आर, न्यू m बाई न्यू p को। तो यहाँ से क्या आ गया Vr के जगह पे हम लोग, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि Lr जो है ये Lm/Lp हमने लिखा है, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रहे कि यहाँ पे Lm/Lp को हमने Lr लिखा है, लेकिन वहां पे लेंथ स्केल जो है वो आपको प्रोटोटाइप टू मॉडल मतलब LP/Lm निकालना है, ये चीज का भी ध्यान रहे एकदम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये Lr जो हो जाएगा Vr के जगह पे हमने क्या रख दिया स्क्वायर रूट ऑफ Lr, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ Vm/Vp को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज डिस्कस फोर्स जो है और ग्रेविटी फोर्स दोनों है, मतलब रिनॉल्ड्स लॉ भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vm के जगह पे हम लोग क्या लिख दिया, Vm के जगह पे हम लिख दिया कि Lm टू द पावर हाफ इंटू Lm डिवाइडेड बाई न्यू m दैट इज इक्वल टू Vp के जगह पे क्या लिख दिया Lp टू द पावर हाफ इंटू Lp डिवाइडेड बाई न्यू p। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, तो Lm टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई न्यू m दैट इज इक्वल टू Lp टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई न्यू p। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, Lp/Lm टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू न्यू p बाई न्यू m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसी के स्केल को बोला है कि ये लेंथ स्केल है, तो क्या लिख सकते हैं Lr टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू न्यू p बाई न्यू m। अब प्रोटोटाइप में क्या यूज किया गया है ग्लिसरीन, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है 5 × 10⁻⁴, तो 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय मॉडल में जो यूज किया गया है वाटर, जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है, तो 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू को अगर देखा जाए 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻⁶, तो ये वैल्यू जो आ गई वो दैट इज 500। तो यहाँ से आपका Lr जो आ गया दैट इज इक्वल टू 500 टू द पावर 2/3।
500 to the power. So this value is coming 62.996. तो अप्रोक्सीमेटली LR जो हो गया दैट इज इक्वल टू 63. और ये LR जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ मॉडल बाय प्रोटोटाइप नहीं है, प्रोटोटाइप बाय मॉडल है. बिकॉज क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था कि व्हाट इज द स्केल रेशियो, लेंथ स्केल, और स्केल को यहाँ पे चेंज किया है, द रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप टू द मॉडल दैट इज इक्वल टू द आपका 63. सो सी ऑप्शन इज